پیر کامل ایپیسوڈ 7 پارٹ 1۔ وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اس سے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ رائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد جب وہ ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا، آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلوایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن، وہ غرہ ہے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کراؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا، آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بار غر رہا ہے۔ وسیم کی بہن؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے، اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا، وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے۔ پاپا، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار، اب ایکٹنگ بند کر دو، مجھے بتا دو وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی تک ان کو پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہارے اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ میری ٹائپ ہے؟ اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں، کل کوئی اور آ کر کہے گا، اور پھر آپ مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہیں اور آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا بھی کیا ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے کراچی میں ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنا پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے، اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا، اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو۔ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے۔
उसने अभी हाशिम मुबीन को ये सब कुछ नहीं बताया है। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं या उसके घर वालों को उस लड़की का पता बता दूं, ताकि ये मामला खामोशी से किसी मसले के बगैर खत्म हो जाए। मगर वो कब तक हाशिम मुबीन को नहीं बताएगा। वो दोस्ती का लिहाज रखकर सब कुछ छुपा भी गया, तब भी हाशिम मुबीन के और बहुत से जराए हैं, उसे वहां से पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सिकंदर ने उसे डराने की कोशिश की। वो मुतासिर हुए बगैर उन्हें देखता रहा। अब झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? वो लड़की रेड लाइट एरिया में है। सिकंदर को उसकी बात पर करंट लगा। व्हाट? मैं उसे वहां से लाया था और वहीं छोड़ आया हूं। वो सफेद चेहरे के साथ सालार को देखते रहे। मगर वो इमामा नहीं थी। मैं परसों लाहौर गया हुआ था। वहां से मैं रात गुजारने के लिए उस लड़की को लाया था। आज मैं उसे वहीं छुड़ाया। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, मगर आप मेरे साथ लाहौर चलें तो मैं आपको उस लड़की के पास ले जाता हूँ या पता बता देता हूँ। आप खुद या पुलिस को कहें कि वो उस लड़की से तस्दीक कर लें। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। तैयबा और सिकंदर बेयकीनी से सालार को देख रहे थे, जबकि वो बड़े मुतमईन अंदाज में खिड़कियों से बाहर देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो। तुम ऐसी जगह जा सकते हो। एक लंबी खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मगर मैं जाता हूं। और इस बात का इमामा के भाई वसीम को भी पता है। मैं कई बार वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ वहां जाता रहा हूं और वसीम ये बात जानता है। आप उससे पूछ लें एड्रेस दो उस लड़की का। वो कुछ देर बाद घूर रहा है। मैं अपने कमरे से लेकर आता हूं, उसने उठते हुए कहा। अपने कमरे में आकर उसने मोबाइल उठाया और लाहौर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन करने लगा। उसे सारी सूरत हाल बताने के बाद उसने कहा, अकमल, अपने पापा को रेड लाइट एरिया के उस घर का पता दे रहा हूं जहां हम जाते रहे हैं। तो वहां किसी भी लड़की को जो मुझे जानती है उसके बारे में बता दो। मैं भी कुछ देर तक तुम्हें दोबारा फोन करता हूं। वो कहते हुए तेजी से एक चिट पर एड्रेस लिखने लगा और फिर उसे ले जाकर सिकंदर के कमरे में आ गया। उसने चिट सिकंदर के सामने कर दी, जिसे उन्होंने तकरीबन छीन लिया। एक नजर उस चिट पर डालकर उन्होंने हशगमी नजरों से उसे देखा। दफा हो जाए यहां से। वो इत्मीनान से अंदाज में वहां से आ गया। अपने कमरे में आकर उसने अकमल को दोबारा फोन किया। मैं तुम्हें वहां पहुंचकर फोन करता हूं, अकमल ने उससे कहा। वो बेड पर लेटकर उसका इंतजार करने लगा। 15 मिनट के बाद अकमल ने उसे फोन किया। सालार, मैंने सनिया को तैयार किया है। उसे मैंने सारा मामला समझा दिया है। अकमल ने उसे बताया वो सनिया को जानता था। अकमल, अब तुम एक कागज और पेंसिल लो और मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, उसे लिखो, उसने अकमल से कहा। और फिर उसे अपने घर की बैरूनी मंजर और लोकेशन की तफसीलात लिखवाने लगा। ये क्या, मैंने देखा हुआ है तुम्हारा घर? अकमल ने कुछ हैरानी से पूछा। तुमने देखा, सनिया ने तो नहीं देखा? ये सारी तफसीलात मैं सनिया के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर पुलिस उसके पास आई तो वो सारी चीजें उससे पूछेगी, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए कि क्या वो वाकई मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में थी। वो गाड़ी में छुप कर आई थी और रात के वक्त आई थी, इसलिए उसे ज्यादा तफसील का नहीं पता। मगर घर के अंदर दाखिल होते वक्त दाएं बाएं दोनों तरफ लॉन है। मेरी गाड़ी का रंग सुर्ख था, स्पोर्ट्स कार, और नंबर वो उसे लिखवाता गया। हम पुलिस के चारों नाकों से गुजरे थे। उसने सफेद शलवार कमीज, सफेद चादर और सियाह स्वेटर पहना हुआ था। रास्ते में हम उस नाम के सर्विस स्टेशन पर भी रुके थे। सालार ने नाम बताया। सर्विस स्टेशन और होटल वो धुंध की वजह से सही नहीं देख सकी। सालार के बाद दीगर हर चीज तफसील से लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक करने वाले आदमी से लेकर चाय बनाने वाले लड़के के होलिये और उसे कमरे की तफसीलात, उन्होंने क्या खाया था, सालार और लड़के के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी, उसने छोटी छोटी तफसीलात उसे लिखवाई थी। उसने अपने घर के पोर्च से लेकर अपने कमरे तक के रास्ते और अपने कमरे का तमाम हुलिया भी उसे नोट करवा दिया था। सनिया से कहो ये सब कुछ रट ले। उसने अकमल को आखिरी हिदायत दी और फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके वो बेड पर बैठा भी कुछ सोच रहा था जब सिकंदर उस्मान अचानक दरवाजा खोलकर उसके कमरे में आए। उस लड़की का नाम क्या है? सनिया, सालार ने बेख्तियार कहा। सिकंदर उस्मान मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद सालार को उस वकील का ख्याल आया जिसके जरिए उन्होंने हाशिम मुबीन से राब्ता किया था। उस वकील को हायर करने वाला भी हसन ही था और सालार सिकंदर के नाम से वो वकील भी वाकिफ नहीं था। मगर सालार के लिए काबिल तशवीश बात इसमें हसन का इन्वॉल्व होना था। हाशिम मुबीन उस वकील से हसन और हसन से उस तक बआसानी पहुंच सकते थे। उसने अगला फोन हसन को किया और हसन को सारे मामले की नौयत से आगाह किया। मैं तुम्हें पहले ही सबसे मना कर रहा था, उसने छूटते ही सालार से कहा। मैं वसीम और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके असर और रसूख से भी बखूबी वाकिफ हूँ। वो बोलता जा रहा था। सालार ने कुछ उकताहट भरे लहजे में उसे टोका। मैंने तुम्हें फोन अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ एक खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। किस खतरे से? हसन चौंका। तुमने जो वकील हायर किया था वो उसके जरिए तुम तक
और फिर मुझ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। सालार ने उससे कहा, नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। हसन ने इसकी बात पर कदर लापरवाही से कहा, क्यों? क्योंकि मैंने सारा काम पहले ही बहुत मोहतात होकर किया है। वो वकील ही मेरे असली नाम और पते से वाकिफ नहीं है। उसे जो एड्रेस और फोन नंबर मैंने दिया था वो जाली था। सालार बेइख्तियार मुस्कुराया। उसे हसन से ऐसी अक्लमंदी और चालाकी की तवक्को रखनी चाहिए थी। वो हर काम बड़ी सफाई से सरअंजाम देने का माहिर था। मैं सिर्फ उसके पास एक बार गया था, फिर फोन पर ही राब्ता किया, और उस मुलाकात में मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं नहीं समझता कि सिर्फ हुलिये से हाशिम मुबीन अहमद मुझ तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो पहुंच गए तो पता नहीं। तो उसके बारे में मैंने नहीं सोचा। हसन ने साफ गोई से कहा, क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाओ और यूं जाहिर करो जैसे तुम्हारी ये गैर मौजूदगी कुछ जरूरी कामों के लिए थी? सालार ने उससे मशवरा दिया। इससे बेहतर मशवरा भी मेरे पास है। मैं उस वकील को कुछ रुपए पहुंचाकर ये हिदायत कर देता हूँ कि हाशिम मुबीन या पुलिस के पहुंचने पर वो मेरा हुलिया गलत बताए। कम अज कम इस तरह फौरी तौर पर मैं किसी परेशानी का शिकार नहीं होऊंगा। और इन्हीं दिनों में वैसे भी चंद हफ्तों के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। हसन ने बताया, पुलिस अगर पहुंच भी गई तब भी उनकी पहुंच से बहुत दूर होऊंगा, मगर मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझ तक पहुंच सकेंगे। इसलिए तुम इत्मीनान रखो। अगर तुम बाकी इतने बेफिक्र और मुतमईन हो तो ठीक है। हो सकता है वो तुम तक ना ही आए, मगर मैंने फिर भी सोचा कि तुम्हें बता दूं। सालार ने फोन बंद करते हुए उससे कहा, वैसे तुम उस लड़की को अब लाहौर में कहाँ छोड़ आए हो? लाहौर की एक सड़क पर छोड़ आया हूँ, उसके अलावा और कहाँ छोड़ सकता था? उसने अपने महल वकू और हुदूद अरबा के बारे में कुछ नहीं बताया, बस वो चली गई। अजीब बेवकूफ़ हो। कम अज कम तुम उससे उसका ठिकाना पूछने का हौसला तो रखते थे। हाँ, मगर मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सालार ने दानिस्ता इमामा से आखिरी बार होने वाली अपनी गुफ्तगू गोल कर दी। मैं हैरान हूं कि तुम अब किस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होने लगे हो। अपनी टाइप की लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना दूसरी बात है, मगर वसीम की बहन जैसी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाना। तुम्हारा टेस्ट भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैं इन्वॉल्व हूं, तुम वाकई अक्ल से पैदल हो, वरना कम अज कम इस तरह की बात मुझसे ना करते। एडवेंचर और इन्वॉल्वमेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है हसन साहब, सालार ने तंजिया लहजे में कहा। और आपने ये फासला एक ही छलांग में तय कर लिया है सालार साहब। हसन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। और तुम्हारा दिमाग मुझसे ज्यादा खराब है, वरना इस तरह की हिमाकत को एडवेंचर कभी ना कहते। हसन भी कदरे झल्लाया हुआ था। अगर तुमने मेरी मदद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम कह दो। सालार को उसकी बात पर अचानक गुस्सा आ गया। अभी मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है, तुम किस बात पर इशारा कर रहे हो? ये टेस्ट वाली बात की तरफ या दिमाग खराब होने वाली बात की तरफ? हसन ने उसी अंदाज में उसकी बात से मुतासिर हुए बगैर पूछा। अच्छा, मुंह बंद कर लो, फजूल बहस मत करो। इस वक्त इन तमाम बातों को करने का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना है। हसन अब संजीदा था। फर्ज करो पुलिस किसी सूरत हम तक पहुंच जाती है और फिर वो इमामा का पता जानने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? और मैं नहीं समझता कि वो कभी भी इस बात पर यकीन करेंगे कि इमामा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। उस वक्त तुम क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूंगा। मैं उनसे वही कहूंगा जो मैं तुमसे कह रहा हूं, उसने बुलंद आवाज में कहा। और हाँ, सारा मसला तुम्हारे इसी बयान से शुरू होगा, मैं इमामा के बारे में नहीं जानता हूं। हसन ने उसका जुमला दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि वो हर कीमत पर इमामा तक पहुंचना चाहेंगे। ये बहुत बात की बात है। मैं इम्कानात और मुमकिनात पर गौर करके परेशान नहीं होता। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। सालार ने लापरवाही से कहा, तुमसे मुझे सिर्फ ये मदद चाहिए कि तुम इस सारे मामले को राज ही रखो और पुलिस के हत्थे ना लगो। तुम्हारे कहे बगैर भी मैं यही करता। वैसे भी मैं अगर पकड़ा गया तो वसीम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस बार तुमने मुझे वाकई बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल से दो चार किया है। ओके, मैं फोन बंद कर रहा हूं क्योंकि तुम पर फिर वही दौरा पड़ने वाला है, वही नसीहतें और पछतावा। यू आर एक्टिंग लाइक माई फादर। सालार ने खटक से फोन बंद कर दिया। उसका जहन पिछली रात के बारे में सोच रहा था और उसके माथे की तेवरियां और बल बहुत नुमाया थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये इस हद तक गिर जाएगा। रेड लाइट एरिया, माई फुट। कभी मेरे खानदान की पिछली 7 नस्लों से कोई भी वहां नहीं गया। और ये लड़का क्या है जो मैंने इसे नहीं दिया? क्या है जिसकी कमी रहने दी? और इसे देखो, कभी ये खुदकुशी की कोशिश करता फिरता है और कभी रेड लाइट एरिया। मेरे अल्लाह, आखिर किस हद तक जाएगा ये? सिकंदर उस्मान ने अपना सर थाम लिया। मुझे तो घर के मुलाजिमों पर भी बहुत ज्यादा एतराज है। आखिर क्यों इस लड़की को उन्होंने अंदर आने दिया? घर के मामलात पर नजर रखनी चाहिए उन्हें। तैयबा ने बात का मौजू बदलते हुए कहा, घर के मामलात और मालिक के मामलात पर नजर रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह मामला घर का नहीं था, मालिक का था, सिकंदर ने तंजिया लहजे में कहा। और फिर उसमें से
किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ आते नहीं देखा। वो कहता है कि वो उसे उसी दिन लाया था। चौकीदार का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, उसने उसके साथ किसी लड़की को आते नहीं देखा। हाँ, जाते जरूर देखा है। मुलाजिमों का भी यही कहना है। उन्होंने ना तो किसी लड़की को आते देखा है और ना ही जाते देखा है। सिकंदर ने कहा, इसका मतलब है वो यकीनन उस लड़की को अच्छी तरह छुपा कर लाया होगा। शैतानी दिमाग है इसका, ये तुम जानती हो। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि सारा मामला खत्म हो जाए, हाशिम मुबीन की बेटी मिल जाए और हमारी जान छूट जाए, ताकि इसके बारे में कुछ सोच सके। सिकंदर उस्मान ने कहा, मेरी तो समझ नहीं आता कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो बेहद बेबस नजर आ रहे थे। वो अगले रोज सुबह मामूल के मुताबिक उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने खिलाफ मामूल वहां सिकंदर उस्मान को मौजूद पाया। वो आमतौर पर उस वक्त नाश्ता नहीं किया करते थे, जरा देर से फैक्ट्री जाया करते थे। सालार को उस वक्त उन्हें वहां मौजूद पाकर कुछ हैरत हुई, मगर उनके सते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से अंदाजा हो रहा था शायद वो सारी रात नहीं सो सके। सालार को सुबह सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार देखकर उन्होंने कतई दुरुस्ती से उससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे गले में मुसीबत डालकर तुम खुद कॉलेज जा रहे हो। जब तक कि मामला खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है तुम कितने खतरे में हो? कैसा खतरा? वो ठटका, मैं नहीं चाहता कि हाशिम मुबीन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम घर पर रहो। सिकंदर उस्मान ने दो टूक लहजे में कहा, उसकी बेटी मिल जाए फिर तुम दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देना। उसकी बेटी अगर 1 साल नहीं मिलेगी तो क्या मैं 1 साल तक अंदर बैठा रहूंगा? आपने उसे मेरे बयान के बारे में नहीं बताया? सालार ने तेज लहजे में कहा, मैं उसे बता चुका हूं। सनिया ने भी तुम्हारी बात की तस्दीक करती थी। उनके लहजे में सनिया का नाम लेते ही तलखी थी, मगर हाशिम मुबीन अभी भी मुसिर है कि उसकी बेटी को तुमने ही अगवा किया हुआ है। तो मैं क्या करूं? उसे यकीन नहीं आता तो ना आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सालार ने लापरवाही से कहते हुए नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। तुम हाशिम मुबीन अहमद को नहीं जानते। वो कितने असर रसूख वाला आदमी है और किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ मुझे है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए अभी तुम घर पर ही रहो। सिकंदर उस्मान ने इस बार कुछ नर्म लहजे में कहा। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी सख्ती का कोई असर नहीं होगा। वो उनकी बात नहीं मानेगा। पापा, मेरी स्टडीज का खर्च होगा, सॉरी, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। सालार सिकंदर उस्मान के लहजे की नरमी से मुतासिर नहीं हुआ था। तुम्हारा हर्ज होता है या नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहता हूं, समझे तुम? इस बार उन्होंने अचानक भड़क कर बुलंद आवाज में उससे कहा, कम से कम आज तो मुझे जाने दें। आज मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। सालार यकदम उनके गुस्से पर कुछ पजल हुआ। तुम वो काम ड्राइवर को बता दो, वो कर देगा, या फिर किसी दोस्त से फोन पर बात कर लो। सिकंदर ने हतमी अंदाज में कहा, मगर पापा आप मुझे इस तरह। सिकंदर उस्मान ने उसकी बात नहीं सुनी। वो ड्राइंग रूम से निकल रहे थे। वो कुछ देर बुलंद आवाज में बड़बड़ाता रहा, फिर तंग आकर खामोश हो गया। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान उसे बाहर नहीं निकलने देंगे, मगर उसे इस बात की तवक्को नहीं थी। उसका ख्याल था कि सनिया को सामने लाने पर उसकी अपनी फैमिली के साथ हाशिम मुबीन में मुतमिन हो जाएंगे और कम से कम ये मुसीबत उसके कंधों से उतर जाएगी। मगर उसके लिए सिकंदर उस्मान का ये इंकशाफ हैरान कुन था कि हाशिम मुबीन ने अभी भी उसके बयान पर यकीन नहीं किया था। सालार वहां बैठा नाश्ता करते हुए कुछ देर उन तमाम मामलात के बारे में सोचता रहा। कॉलेज ना जाने का मतलब घर में बंद हो जाना था और वो घर में बंद नहीं होना चाहता था। उसका मूड यकदम ऑफ हो गया। नाश्ता करते करते उसने अधूरा छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लाउंज में बैठे थे जब मुलाजमा कुछ झिझकते हुए उनके पास आई। हाँ कहो, पैसों की जरूरत है? सिकंदर उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो इस मामले में खासे फराख दिल थे। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। बोलो। वो हनूज अखबार में मुनहमिक थे। मुलाजमा कुछ परेशान होने लगी। नासरा ने बहुत सोच समझकर सालार और इमामा के बारे में सिकंदर उस्मान को बताने का फैसला किया था, क्योंकि उसे ये सब कुछ अब बहुत परेशान कुन लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि जल्द या बदेर ये पता चल जाए कि उन दोनों के दरमियान राब्ते का जरिया वो थी, और फिर उसे उसके पूरे खानदान को पुलिस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने शौहर से मशवरे के बाद उसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था, ताकि कम से कम दोनों घर वालों में से किसी एक की हमदर्दी अपने साथ रखे। चुप क्यों? बोलो। सिकंदर उस्मान ने उसे खामोश पाकर एक बार फिर उससे कहा। उनकी नजरें अभी भी अखबार पर जमी हुई थी। सिकंदर साहब, मैं आपको सालार साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नासरा ने बिलाखिर एक तवील तवक्कुफ के बाद कहा।
सिकंदर उस्मान ने बेइख्तियार अखबार अपने चेहरे के सामने हटाकर उसे देखा। सालार के बारे में क्या कहना चाहती हो? उन्होंने अखबार को सामने सेंटर टेबल पर फेंकते हुए संजीदगी से कहा। सालार साहब और इमामा बीबी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सिकंदर उस्मान का दिल बेइख्तियार उछलकर हलक में आ गया। क्या? बहुत दिन पहले एक दिन सालार साहब ने मुझसे कहा था कि मैं उनका मोबाइल अपनी बेटी के हाथ इमामा बीबी को पहुंचा दूं। सिकंदर उस्मान को लगा वो दोबारा कभी नहीं हिल सकेंगे। तो हाशिम मुबीन अहमद का ख्याल और इसरार ठीक है, उनके बदतरीन कयास और अंदाजे दुरुस्त थे। फिर उन्हें अपनी आवाज किसी खाई से आती लगी। मैंने इनकार कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे बहुत धमकाया। उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाल देंगे, जिस पर मजबूरन मैं वो मोबाइल इमामा बीबी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। अपनी पोजीशन को महफूज रखने के लिए नासरा ने अपने बयान में झूठ की आमेजिश करते हुए कहा। फिर उसके कुछ दिन बाद एक दिन सालार साहब ने कहा कि मैं कुछ कागजात इमामा बीबी तक पहुंचाऊं और फिर उसी वक्त उन कागजात को वापस ले आऊं। मैंने अपनी बेटी के जरिए वो कागजात भी इमामा बीबी के पास पहुंचाकर वापस मंगवा लिए और सालार साहब को दे दिए। मैंने सालार साहब से इन कागजात के बारे में पूछा, मगर उन्होंने नहीं बताया। मुझे शक था कि शायद वो निकाहनामा था, क्योंकि उस वक्त सालार साहब के कमरे में 5 लोग मौजूद थे। उनमें से कोई एक मौलवी भी था। सिकंदर उस्मान को वहां बैठे बैठे पसीना आने लगे थे। और ये कब की बात है? इमामा बीबी के जाने से चंद दिन पहले। नासरा ने कहा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? सिकंदर उस्मान ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं बहुत खौफजदा थी साहब जी। सालार साहब ने मुझे धमकियां दी थी। अगर मैंने आपको या किसी और को इस सारे मामले के बारे में बताया तो वो मुझे यहां से बाहर फिकवा देंगे। नासरा ने कहा। वो कौन लोग थे, उन्हें पहचानती हो? सिकंदर उस्मान ने बेहद इस्तराब के आलम में कहा। बस एक को, हसन साहब थे। उसने सालार के एक दोस्त का नाम लिया। बाकी और किसी को मैं नहीं पहचानती। नासरा ने कहा। मैं बहुत परेशान थी, आपको बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कौन कौन इसके बारे में जानता है? सिकंदर उस्मान ने कहा। कोई भी नहीं, बस मैं, मेरी बेटी और मेरा शौहर। नासरा ने जल्दी से कहा। मुलाजमों में से किसी और को कुछ पता है? तौबा करें जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताती? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुमने जो कुछ किया उसके बारे में तो बाद में तय करूंगा, मगर फिलहाल तुम एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। तुम किसी को भी सारे मामले के बारे में नहीं बताओगी। अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना इस बार मैं न सिर्फ तुम्हें वाकई घर से निकाल दूंगा, बल्कि मैं हाशिम मुबीन और पुलिस से कह दूंगा कि सब कुछ तुमने करवाया है। तुमने ही उन दोनों को गुमराह किया था और तुम ही उन दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाती रही। फिर पुलिस तुम्हारे साथ और तुम्हारे खानदान के साथ क्या करेगी, तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सारी उम्र जेल के अंदर ही गुजर जाएगी। वो गुस्से के आलम में से धमका रहे थे। नहीं साहब जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? आप मेरी जबान कटवा दीजिएगा अगर मेरे मुंह से दोबारा इसके बारे में कुछ सुने। नासरा घबरा गई, मगर सिकंदर उस्मान ने रखाई के साथ उसकी बात काट दी। बस काफी है, अब तुम जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उन्होंने उसे जाने का इशारा करते हुए कहा। सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। उस वक्त उनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था और उस वक्त उन्हें पहली बार सालार के हाथों बेवकूफ बनने का एहसास हो रहा था। वो किस ढिठाई, महारत और बेहूदगी से उनसे झूठ पर झूठ बोलता रहा और उन्हें धोखा देता गया था, और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका था। अगर मुलाजिम उन्हें सब कुछ ना बताती तो वो अभी भी टांग पर टांग रखे मुतमिन बैठे होते। यही सोचकर कि सालार इमामा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही उसकी गुमशुदगी में उसका कोई हिस्सा था, वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू कर चुका था। वो जानते थे कि सालार की निगरानी करवाई जा रही थी और हाशिम मुबीन अहमद को सब कुछ पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। उनका कुछ देर पहले इत्मीनान यकदम खत्म हो गया था। वो अंदाजा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे, उन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था, सालार और इमामा के दरमियान ताल्लुक की नौयत क्या थी, और उस वक्त उनका दिल चाह रहा था कि वो उसका गला दबा दें या फिर उसे शूट कर दें। मगर वो जानते थे वो ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। सालार सिकंदर उनका वो बेटा था जिससे वो अपनी औलाद में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, और इस तरह बेवकूफ बनने के बाद वो पहली बार सोच रहे थे कि वो अब सालार सिकंदर की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो उसे मुकम्मल तौर पर हर मामले के बारे में अंधेरे में रखेंगे, वैसा ही जैसे वो कर रहा था। उसकी इमामा से जान पहचान कैसे हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने घर में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता कि उसकी जान पहचान इमामा से कैसे हुई? कोई बच्चा तो नहीं है कि मेरी उंगली पकड़कर चलता हो, तैयबा ने कदरे खफगी से कहा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि इस पर नजर रखा करो, मगर तुम्हें अपनी एक्टिविटीज से फुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। इस पर तवज्जो देना सिर्फ मेरा ही फर्ज क्यों है? तैयबा यकदम भड़क उठी।
आपको भी तो अपनी एक्टिविटीज छोड़ देनी चाहिए। सारा इल्जाम मेरे ही सर क्यों? मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, और इस बहस को खत्म करो। इमामा के साथ शादी, तुम अंदाजा कर सकते हो कि हाशिम मुबीन को जब इस ताल्लुक का पता चलेगा तो वो क्या तमाशा खड़ा करेंगे। मुझे इस सोच कर शौक लग रहा है कि उसने ऐसी हरकत करने का सोच कैसे लिया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज्जत है। सिकंदर उस्मान तैयबा के करीब सोफे पर बैठे हुए बोले, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। इस सारा चक्कर उसी वक्त शुरू हुआ होगा जब पिछले साल उसने खुदकुशी की कोशिश के बाद उसकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ थे कि हमने इस मामले पर नजर नहीं रखी, वरना शायद ये सब बहुत पहले सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कनपट्टी मसलते हुए कहने लगे, और यकीनन ये लड़की भी उसके साथ अपनी मर्जी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्जी के खिलाफ तो निकाह नहीं कर सकता। हाशिम मुबीन अहमद को देखें, वो यूं शोर मचा रहा है जैसे उसकी बेटी का उसमें कोई कसूर ही नहीं है। जो किया सलार नहीं किया है। उन्होंने तो FIR भी अगवा की दर्ज कराई है। तैयबा नए सिरे से सुलगने लगी। जो भी है कसूर तुम्हारे बेटे का है, ना वो ऐसे कामों में पड़ता ना इस तरह फंसता। अब तो तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें सूरत हाल से कैसे बचना है। अभी हम इतनी बुरी तरह नहीं फंसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। आप पर यह जुर्म साबित नहीं हुआ है। पुलिस या हाशिम मुबीन अहमद के पास कोई सबूत नहीं है, और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन उन तक कोई सबूत पहुंच गया उस दिन क्या होगा, तुमने ये सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। आप फिर इम्कानात की बात कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो नहीं है, और हो सकता है हो भी ना। उसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है तो हो सकता है एक और धोखा ये हो कि उसका राब्ता उस लड़की के साथ नहीं है। मुमकिन है ये भी उस लड़की के साथ राब्ते में हो। सिकंदर उस्मान को ख्याल आया, हाँ हो सकता है। फिर क्या किया जाए? मैं उससे बात करूंगा तो समझो पत्थर के साथ अपना सर फोड़ूंगा। वो फिर झूठ बोल देगा। झूठ बोलने में तो माहिर हो चुका है। उन्होंने तनफ्फुर आमेज लहजे में कहा, बस चंद माह में उसका BA मुकम्मल हो जाए, फिर मैं उसे बाहर भिजवा दूंगा। कम से कम हर वक्त हाशिम मुबीन की तरफ से जिन अंदेशों का शिकार रहता हूं वो तो खत्म होंगे। उन्होंने सिगरेट का एक कश लगाया। मगर आप एक चीज भूल रहे हैं सिकंदर। तैयबा ने बड़ी संजीदगी से चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। क्या? सिकंदर ने उन्हें चौंक कर देखा। सालार की इमामा के साथ खुफिया शादी। इस शादी के बारे में जो कुछ भी करना है ये आपको खुद ही करना है। आप क्या करेंगे इस शादी के बारे में? तलाक के अलावा इस शादी का और क्या किया जा सकता है? सिकंदर उस्मान ने कतई लहजे में कहा। वो शादी मानने पर तैयार नहीं है तो तलाक देने पर रजामंद हो जाएगा। जब मैं उसे सबूत पेश करूंगा तो उसे अपनी शादी का एतराफ करना ही पड़ेगा। और अगर शादी का एतराफ करने के बाद भी उसने इमामा को तलाक देने से इनकार कर दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो मैं निकाल लूंगा। चाहे वो अपनी मर्जी से उसे तलाक दे या फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़े, मैं ये मामला खत्म कर दूंगा। इस तरह की शादी इंसान को सारी उम्र ख्वार करती है। उससे तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना मैं इस बार उसे मुकम्मल तौर पर अपनी जायदाद से आग करने का इरादा रखता हूं। सिकंदर उस्मान ने दो टोक अंदाज में कहा। हसन कुछ देर इस्लामाबाद के एक होटल में था जब अचानक उसे अपने वालिद की कॉल मिली। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचने के लिए कह रहे थे। उनका लहजा बेहद अजीब था, मगर हसन ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब 15 मिनट बाद अपने घर पहुंचा तो पोर्च में खड़ी सिकंदर उस्मान की गाड़ी देखकर चौकन्ना हो गया। वो सालार के घर की तमाम गाड़ियों और उनके नंबर्स को अच्छी तरह पहचानता था। सिकंदर अंकल को मेरे इस मामले में इन्वॉल्व होने के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा सालार का दोस्त समझकर पूछगछ करने आए होंगे। मैं बड़े इत्मीनान से उनकी बातों का जवाब दूंगा और किसी भी इल्जाम की तरदीद कर दूंगा, लेकिन मेरी परेशानी पापा के सामने मेरी पोजीशन मशकूक कर देगी। इसलिए अंकल सिकंदर को देखकर मुझे कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करना चाहिए। उसने पहले अपना लाहे अमल तय किया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ स्टडी में दाखिल हो गया। उसके वालिद कासिम फारूकी और सिकंदर उस्मान कॉफी पी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की गैर मामूली संजीदगी और इस्तराब वो एक लम्हे में भाप गया था। कैसे अंकल सिकंदर आप? इस बार बहुत दिनों बाद आप हमारी तरफ आए। बावजूद इसके कि सिकंदर या कासिम ने उसकी हेलो का जवाब नहीं दिया, हसन ने बहुत बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया। उसे इस बार भी जवाब नहीं मिला था। सिकंदर उस्मान उसे गौर से देख रहे थे। बैठो, कासिम फारूकी ने कदरे दरश्ती से कहा। सिकंदर तुमसे कुछ बातें पूछना है। तुम्हें हर बात का ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर से कह चुका हूं कि वो तुम्हें पुलिस के पास ले जाए। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। कासिम फारूकी ने उसके बैठते ही बिला तमहीद कहा। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। हसन ने हैरत का मुजाहरा किया, मगर उसका दिल धड़कने लगा था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना उसने समझ लिया था।